السلام علیکم دوستو، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل آئی اسٹوڈیو میں۔ دوستو، انسان جب دنیا میں آیا تو اللہ پاک نے اسے مخلوقات میں سب سے اشرف قرار دیا۔ دوسرے چرندوں پرند کے مقابلے میں اسے سمجھ دی، بولنے، سننے اور دیکھنے کی طاقت بھی دی۔ انسان مٹی سے پتھر اور پتھر سے لکڑی، لکڑی سے لوہے کے زمانے میں منتقل ہوتا گیا۔ دیکھا جائے تو ہر آنے والا دن انسان کی زندگی کے لیے کچھ اچھا ہی لے کر آ رہا تھا۔ آج سے 200 سال پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہم میلوں دور فون پر باتیں کیا کریں گے، یقیناً نہیں، لیکن یہ سب ممکن ہوا اور آپ سب نے دیکھا بھی۔ ابھی دنیا میں ایسی ترقیاں ہوں گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اب 21ویں صدی گزر رہی ہے۔ آج سے ٹھیک 1 صدی پہلے دنیا کے حالات آج سے بہت مختلف تھے۔ آج سے 1 صدی پہلے کیا ہوا تھا، اس بات سے آشنائی حاصل کرنے سے پہلے ذرا پہلے ہم اسلامی تاریخ پر موٹی موٹی نظر دوڑاتے ہیں۔ 7ویں صدی عیسوی جب دنیا میں اسلامی طاقتیں سامنے آئیں، عدل و انصاف کی فضا قائم ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے مسلمان آدھی دنیا پر غالب آ گئے۔ 13ویں صدی کا آغاز ہوا تو مسلمانوں کی سب سے بڑی اسلامی سلطنت سلطنت عثمانیہ دنیا کی نظروں کے سامنے آئی۔ سلطنت عثمانیہ جس کو مسلمانوں نے ہر آنے والے سال اس سلطنت کو پھیلانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ مسلمانوں کے مقدس ترین شہر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ بھی اسی سلطنت میں شمار ہوتے تھے، اور ترکوں کا یہی دور انسانی تاریخ کی ایجادات اور کامیابیوں کا دور کہلاتا ہے۔ ترکوں میں کچھ خامیاں بھی تھیں اور وہ خامیاں ہمیشہ سے مسلمانوں کے زوال کی وجہ بنتی آئی تھیں، جن میں مسلم سلطانوں کی عیاشیاں اور اپنوں کے ساتھ غداریاں اہم ترین تھیں۔ لیکن مسلمانوں کی اس عظیم سلطنت کے تباہ ہونے کی ایک بڑی وجہ اور بھی تھی، اور وہ وجہ تھی پہلی جنگ عظیم۔ 19ویں صدی میں دنیا کے مختلف ممالک میں بے شمار جنگیں اور قتل و غارت ہوئی۔ ان سب کے دوران پوری دنیا میں 1 کروڑ لوگ جان کی بازی ہار گئے۔ 19ویں صدی کا اختتام ہو رہا تھا اور دنیا کی ایجادات انسانی زندگی کو ختم کرنے پر لگی ہوئی تھی۔ مشین گنیں، نت نئی بندوقیں اور گیسوں کی مدد سے انسانی زندگی کو ختم کرنا اب بہت آسان ہو چکا تھا۔ کمزور ممالک کو فتح کرنا اب جنون کی حد تک دوسرے ممالک پر سوار ہو چکا تھا۔ ایسے میں کچھ عالمی طاقتوں کے آپس میں معاہدے ہوئے۔ ہلکی جنگیں کئی ممالک کے درمیان مختلف مقامات پر جاری رہیں۔ 28 جون 1914 کو ایک سربین باشندے نے آسٹریا کے ایک شہزادے کو گولی مار دی۔ یہ گولی غلطی میں نہیں بلکہ پوری پلاننگ کے ذریعے ماری گئی تھی۔ جرمن جو اس جنگ میں آسٹریا کی مدد کے لیے تیار بیٹھے تھے، انہوں نے آسٹریا کو ہلاشیری دی اور سربیا کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ اب روس، فرانس، برطانیہ، اٹلی، امریکہ اور سربیا ایک طرف تھے، جبکہ آسٹریا، ہنگری، جرمن، عثمانی اور بلغارین دوسری طرف تھے۔ یہ وہ اتحادی ممالک تھے جو اس جنگ میں سب سے زیادہ متاثر ہوئے تھے۔ 10 دوسرے ممالک بھی اس جنگ میں کود گئے تھے اور اس جنگ نے 20ویں صدی تک ہونے والی سبھی جنگوں کے ریکارڈ توڑ دیے۔ 1 کروڑ 30 لاکھ افراد پوری دنیا سے اس جنگ کی وجہ سے صرف 10 سالوں میں مارے گئے۔ صرف ایک دن کے دوران 30 لاکھ سے زائد فوجی مارے گئے تھے۔ یہ پہلی جنگ عظیم تھی جس میں جنگ نہ صرف زمین اور سمندر میں لڑی گئی بلکہ یہ جنگ ہوا میں بھی لڑی گئی تھی۔ اس جنگ کے پہلے حصے میں عثمانی، جرمن اور اتحادی طاقتور رہے، لیکن 3 سالوں کے بعد معاشی لحاظ سے یہ ممالک کمزور ہونے لگے اور ریشہ دوانیوں کی وجہ سے ان کی یہ سلطنت کمزور ہونے لگی۔ 1918 کو جرمنی کی درخواست پر جنگ بند ہو گئی تو سلطنت عثمانیہ تب تک اپنے کئی علاقوں سے ہاتھ دھو چکی تھی۔ 10 اکتوبر 1920 کو سلطنت عثمانیہ اور اتحادی قوتوں کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا۔ اس معاہدے پر عثمانی سلطنت نے دستخط کر دیے، مگر ترکی کی جمہوری تحریک نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور یوں اس معاہدے یعنی معاہدہ سیورائے پر عمل نہیں ہو سکا۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک یعنی ترکوں کا باپ، جو پہلے ہی عثمانی فوج کا ایک سپہ سالار تھا، اس کی قیادت میں ترکی نے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا۔ یہ آزادی برطانیہ کے قبضے اور استنبول یعنی قسطنطنیہ سے سلطان کی بادشاہت سے لینی تھی۔ اس معاہدے سے پہلے ہی اپریل 1920 میں ترک حجاز یعنی سعودی عرب اور آرمینیا کو آزاد ملک تسلیم کر چکے تھے۔ ترکی کے مخالفین ترکی پر پے در پے وار کر رہے تھے۔ مغربی اناطولیہ میں یونانی افواج پیش قدمی کر رہی تھیں۔ ترکوں نے مصطفیٰ کمال کی قیادت میں روس سے معاہدہ کر کے دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور یونانیوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ اتا ترکی اس فتح کے ساتھ ہی جنگ عظیم اول کے اتحادی جو ترکی کی ایک نہ سن رہے تھے، دوبارہ سے مذاکرات کی دعوت دینے لگے اور 24 جولائی 1923 کو سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزان میں
एक तारीख साज मुआहदा हुआ। मुआहदा लौज़ान, जिसे तुर्की के लोग तुर्की की अजीम फतह भी समझते हैं और तुर्की की कैद भी। इस मुआहदे के साथ ही मुआहदा सेवराय को तुर्की के हक में ख़त्म भी कर दिया गया, मगर अगले 100 सालों के लिए तुर्की को बांध दिया गया। मुआहदा सेवराय, जिसमें तुर्की अपने मकबूजा ममालिक को आज़ाद करार दे रहा था, ख़त्म कर दिया। यानी जो शराइत मुआहदा लौज़ान में रखी गई, उनके पूरा होने के बाद तुर्की अपने मकबूजा इलाके वापस हासिल कर सकता है। तुर्की के उस वक्त के आखिरी सुल्तान का नाम सुल्तान मोहम्मद वहीदुद्दीन था। सुल्तान और सुल्तान के हामियों की तरफ से इस मुआहदे को तस्लीम नहीं किया गया और कहा गया कि यह तुर्की पर जबरन मुसल्लत किया गया है। जो मुआहदा कमालियों और जंग अजीम के इत्तेहादियों के दरमियान किया गया, इसके नतीजे में सुल्तान की सारी अमलाक जब्त कर ली गई थी। 3 बर्रे आज़मों पर फैली मुसलमानों की खिलाफत यानी खिलाफत उस्मानिया का खात्मा कर दिया गया, जिसके खात्मे के बाद दुनिया में 40 नए मुल्क वजूद में आए। यह खिलाफत उस्मानिया जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इतनी ताकतवर थी कि अगर उस वक्त के इस खिलाफत के मातहत चलने वाले ममालिक की बात की जाए तो इनमें मकबूल तरीन ममालिक कुछ ये थे, जैसे आर्मेनिया, इराक, शाम, उर्दन, फ़लस्तीन, कब्रस, बल्गारिया, रोमानिया, यूनान, सऊदीया और मिस्र जैसे ममालिक इस सल्तनत का हिस्सा समझे जाते थे। ये सल्तनत ही उस वक्त मुसलमानों की कुव्वत थी, मुसलमानों की शानो शौकत थी। इनके साथ लड़ने से पहले दुश्मनों को कई बार सोचना पड़ता था, मगर इस मुआहदे के बाद तुर्की पर जो शराइत आयद कर दी गई, उसने तुर्की को बांध कर रख दिया। वो शराइत क्या थी, ज़रा सुनिए। सुल्तान की ज़ाती अमलाक पर कब्जा कर लिया गया और सुल्तान को मुल्क बदर कर दिया गया। खिलाफत उस्मानिया का खात्मा कर दिया गया। 3 बरे आज़मों पर फैली हुई खिलाफत के असासों से दस्तबरदारी, जो तुर्की खिलाफत उस्मानिया का मरकज़ था, उसे एक सेकुलर स्टेट करार दिया गया। इस्लाम और खिलाफत के ऊपर पाबंदी लगा दी गई। इस्लाम अंगेज़ तकारीर और अरबी में अजान देने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। तुर्की के कुदरती वसाइल में पेट्रोल सरे फहरिस्त था। पेट्रोल की ड्रिलिंग पर पाबंदी लगा दी गई, यानी तुर्की सिर्फ पेट्रोल खरीदने का पाबंद बना दिया गया। तुर्की के शहर इस्तंबुल के दरमियान में से एक नहरनुमा समुंदर है, जिसे बास्फोरस कहा जाता है। यह तिजारत का एक इंतहाई शॉर्टकट रास्ता भी है। इस समुंदर की अहमियत नहर स्विस जितनी है, यानी एक बरे आज़म से दूसरे बरे आज़म तक माल पहुंचाना बहुत आसान था। तुर्की पर जो पाबंदियां लगाई गईं, उनमें यह भी था कि बास्फोरस को आलमी समुंदर करार दिया जाए और इस समुंदर से गुजरने वाले किसी भी बहरी जहाज से तुर्की टैक्स वसूल नहीं कर सकेगा। इन सभी शराइत के बाद इस मुआहदे को 100 साल के लिए तुर्की पर लागू कर दिया गया। 1299 से शुरू होने वाली खिलाफत 1922 में अपने इख्तिताम को पहुंची। ये मुआहदा जो 1923 में हुआ, 2023 में मुकम्मल हो जाएगा। आप सब देख रहे होंगे कि पिछले कुछ सालों से जब से तैयब उर्दगान तुर्की के लिए नुमायां काम कर रहा है, सारे यहूदो नसारा एक पेज पर खड़े हो चुके हैं। आए रोज़ तुर्की को धमकियां लगाई जा रही हैं, लेकिन मर्द मुजाहिद तैयब उर्दगान, जो हर आलमी मसले पर बात करता है, अपने मौक़िफ़ पर डटा हुआ है। मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आने वाले 5 से 10 साल मेरी, आपकी और हम सब की ज़िंदगियों में बहुत अहम है। दुनिया में इतनी बड़ी तब्दीली आएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। अब ये आपके ऊपर है कि आप इस तब्दीली का शिकार होना चाहते हैं या इस तब्दीली का हिस्सा बनना चाहते हैं। तुर्की में चंद साल पहले अमेरिका के कहने पर फौजी बगावत हुई, जिसे तुर्क अवाम ने नाकाम बना दिया। तुर्की में हालात को ख़राब करने के लिए मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं। कभी मुआशी तो कभी इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगाई जाती हैं। अब जब तुर्की रूस से दफाई सलाहियत को मजबूत करने के लिए दफाई निज़ाम खरीद रहा है, जिसे S-400 का नाम दिया गया। इस दफाई निज़ाम के बारे में कहा जाता है कि कोई भी परिंदा तुर्की की इजाज़त के बगैर मुल्की हदूद में दाखिल नहीं हो सकता, जिसे खरीदने से रोकने के लिए अमेरिका आए रोज़ धमकियां भी लगा रहा है, जिसका तैयब उर्दगान मुंह तोड़ जवाब भी दे रहा है। इससे जाहिर होता है कि इंसान अगर कुछ करने की ठान ले तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। यह सब कुछ इसलिए है कि लोग डरे हुए हैं कि कहीं मुसलमान दोबारा से इकट्ठे ना हो जाएं। आप गौर करें तो आपको तैयब उर्दगान और पाकिस्तानी लीडर इमरान खान की बात से महसूस होगा, जो मुसलमानों को जोड़ने की बात कर रहे हैं। तैयब उर्दगान भी यही कहता है कि 2023 के बाद तुर्की पहले जैसा बीमार तुर्की नहीं रहेगा। तुर्की क्यों बार बार मुसलमानों की मदद के लिए भाग रहा है? यकीनन उसी अपने पुराने ख्वाब की ताबीर बनने की कोशिश में है। तुर्क मुसलमानों का खून जोश मार रहा है, पुराने जज्बे रंग ला रहे हैं, और यही चीज़ अमेरिका, इसराइल और मुशरिकीन ममालिक को बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। 2023 के बाद तुर्की बास्फोरस से गुजरने वाले हर बहरी जहाज़ से टैक्स वसूल भी करेगा।
अपनी ज़मीन और दूसरे ममालिक में आयल पर इन्वेस्टमेंट भी करेगा। इंशाल्लाह कब्रस का मसला तुर्की के साथ इल्हाक की सूरत में हल होगा और तुर्क सुल्तान जिन्हें मुल्क बदर किया गया दोबारा से वतन वापस आएंगे। और दूसरी तरफ अमेरिकन मीडिया हमारी नौजवान नस्ल को डराने में लगा हुआ है। हर बड़े चैनल पर या तो पाकिस्तान और तुर्की के खिलाफ बात होती है या ईरान के खिलाफ, और हर बार ये वाज़ेह करने की कोशिश की जाती है कि अमेरिका के साथ लड़ना एक बहुत बड़ी हमाकत है। अमेरिका जब चाहे तुम्हें मिटा सकता है। ये बात सोचने की है कि क्या वाकई अमेरिका इतना सुपर पावर है कि जो चाहे कर सकता है। हमें बतलाया जाता है कि अमेरिकन सैटेलाइट इतने पावरफुल हैं कि पूरी दुनिया में होने वाली हर छोटी बड़ी नकलो हरकत को देख सकते हैं। पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए। अमेरिका के मना करने के बावजूद पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए, मगर उनके सैटेलाइट सिस्टम इतनी बड़ी हरकत को नहीं देख सके। अमेरिका के यानी नेटो के 20,000 कंटेनर, सिर्फ कंटेनर नहीं, जदीद असले और टेक्नोलॉजी से भरे हुए 20,000 कंटेनर गायब हैं। क्या पाकिस्तान इतना बड़ा है कि अमेरिका की सैटेलाइट यहाँ मुकम्मल काम नहीं करती, या हमारे इरादे इतने मजबूत हैं कि हम महसूस ही नहीं होने देते कि असल में हो क्या रहा है। अगर अमेरिका इतना ही पावरफुल है तो अपने 20,000 कंटेनर ढूंढ कर दिखा दे। यकीनन इंसान जब करने पर आ जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसका मुकाबला नहीं कर सकती। मैं होऊंगा या नहीं इसका फैसला तो खुदा की ज़ात करेगी, मगर आने वाले 5 से 10 सालों में जो होगा वो आप में से कोई ना कोई ज़रूर देखेगा और मुसलमानों पर फ़ख्र करेगा। दोस्तों, मुखालफिन की बातों में ना आओ और अपने मुहाफ़िज़ों के लिए दुआ मांगा करो। अल्लाह आप सबका हामी व नासर हो। आखिर में मैं आप सब दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि जिन्होंने अभी तक हमारे YouTube चैनल आई स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल बटन को भी दबा दें ताकि मालूमात से भरपूर कोई भी वीडियो आप दोस्तों से कहीं मिस ना हो जाए। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक वाल पर शेयर करते हुए अपनी पसंदीदगी का इजहार कीजिएगा। मेरी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। अगली वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए, आप अपनी तजावीज़ बज़रिया कमेंट हमें ज़रूर अरसाल कीजिएगा। आप दोस्तों से मुलाकात होगी ऐसी ही किसी मालूमाती वीडियो के ज़रिए। तब तक के लिए अपने इस दोस्त मोहम्मद नबील को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।